Yes, good afternoon everyone. We are learning second lecture on atom molecule nuclei. First lecture already I had explained what is the structure of atom. This is lecture 2 of atom molecule nuclei. Basically, we are going to learn atom chapter. Atom is a different chapter and nuclei is a different chapter. So what is basically we are learning structure of atom. You can quite relate that chapter from chemistry also, but the physics point of view, this chapter is quite different. बहुत सारी चीजें जो नई है जो आपको पता चलेगी कि रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक्चुअली गीगर मास्जिन से हुआ था. We studied गीगर मास्जिन experiment. Experiment is different and then observation and conclusions are different. Geiger and Masdin experiment क्या था? Do you remember there was an alpha, this is an alpha particle source जो यहाँ रखा गया था. It can americium, different elements can be used for which are alpha particles. Alpha particles जो emit कर देगी collimates with a fine beam, एकदम पतला सा बीम. और बाद में यहाँ gold foil. I'd explain why gold foil is used, and then it happens to scattered. तो हम scattering को observe करने के लिए 360 डिग्री में, almost 360 डिग्री में we keep a zinc sulfide screen with then yes electron with then. Sir, your voice is breaking. Which will be emitted on the. Sir, bandwidth full low है तुमका. So, and your voice reaches us after 5 minutes. So, The bandwidth low है. Bandwidth तर white मध्ये दिसतंय मला. तर आता white मध्ये आलं. पहिले red होतं मग yellow झालं. So we kept a zinc sulfide screen which is 360 degree पे रखा गया है, so that anywhere the alpha particles which are scattered at different angles which can be measured by the zinc sulfide screen. This was the experiment which was performed by Geiger and Masdin. And यहाँ एक electron microscope या फिर just a microscope is kept which will measure the light which is falling on this. ये जैसे ही light गिरेगा यहाँ bright spot, तो लाइट का जो लाइट अमाउंट निकलेगा वो माइक्रोस्कोप के द्वारा they would measure it and say that कि कितने पार्टिकल्स यहाँ एमिट हुए, कितने पार्टिकल्स यहाँ इंसिडेंट हुए. सॉरी, तो अल्फा पार्टिकल्स एक जगह पे इंसिडेंट नहीं होगा, ये सब जगह पे अलग अलग. नॉर्मली क्या होना चाहिए था, एक वॉल जैसा होता ना बॉल, तो रिटर्न आता था, या फिर खाली होता तो सब पास हो जाते थे. बट ये स्कैटर्ड हुआ तो दे हैड एन कंक्लूजन्स व्हिच आर डिफरेंट देन नॉर्मल. So this was Geiger-Masdin experiment. Now we are going to see the observation. So what was the observation? ये gold foil. You remember this diagram? Gold foil, lead brick, lead bricks. This is the alpha particle source and zinc sulfide screen. इतना सा डायग्राम बनाया तो हमारा 2 मार्क का zinc sulfide screen. 2 मार्क का क्वेश्चन अगर Geiger-Masdin का पहला क्वेश्चन that can be asked in exams. What is Geiger-Masdin experiment? I hope lecture का starting पहला part समझ में आया. What is Geiger-Masdin experiment? So सब लोग अपनी नोटबुक में assignment लिखो. First question. Explain Geiger-Masdin experiment. Explain Geiger-Masdin experiment with proper diagram. एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन नहीं लिखने हैं. एक्सपेरिमेंट में जो जो यूज किया है उसके बारे में लिखना है. डायग्राम और वो जो पॉइंट है 4. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. बाकी सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा. तो जो Geiger-Masdin एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करना है हमें? We are supposed to write 4 points in that. Alpha particle source, then this is collimated means what? Fine beam बनाया. Gold foil is used for scattering, and a zinc sulfide screen which is used for measuring that how many alpha particles are scattered.
ये चार चीजें आप बता सकते हो, और माइक्रोस्कोप अगर साथ में ले लिया तो भी चलेगा, अदरवाइज यू कैन से दैट there's a device which is used for measuring the light. No need of saying that microscope was used. ये अगर एक्सपेरिमेंट लिखा, पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है. What is first assignment question? Explain Geiger-Marsden experiment with proper diagram. I hope everyone has written. और अगर इसको अलग नोटबुक बना के सबमिट करना है इस चैप्टर को, you can move ahead. आप Geiger-Marsden ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन है लिखते जाना. Second topic. Now, what was the observation made by Rutherford on the basis of Geiger-Marsden experiment? So, observation which were made, आपको ये अच्छी तरह पता होगी. Observation of Rutherford experiment or Rutherford. Observation done by Rutherford. I hope you remember the year 1903 or 1908. मतलब 1897 में डाल्टन्स, 1897, और उसके 5-7 साल बाद ये रुदरफोर्ड. Observation of Rutherford on alpha particle scattering experiment. This is question number 2 आपका assignment. What is observation? आपको मालूम है अच्छी तरह observation क्या थे? Most of the alpha particles pass through. Most of the मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल alpha particles pass हो गए. Second, very few alpha particles, that is 0.14% of alpha particles were deflected less than 90 degrees. Then 1 out of 8,000. 1 out of 8,000. This is a method of getting percentage. 1 out of 8,000 were deflected greater than 90 degrees. And very, very few, 1 out of 20,000 were deflected at 180 degree. That is, they reverse their path. They reverse their path. They get reverse. जो डायरेक्शन में गए 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होता है. This was the observation. First, most of the alpha particles were scattered. Sorry, most of the alpha particles passed through. Second, very few. आप बाद में कैसा है, ये नंबर याद नहीं रहता तो few, very few, very very few, like that you can go. Doesn't matter if you don't remember this numbers. कि कोई numbers का कोई आज ये नहीं कहा गया कि 100% करेक्ट है, क्योंकि इतना अल्फा पार्टिकल्स गिनना भी बहुत मुश्किल है. तो that's why we can say that most of the few, very few, very very few. Okay, so I hope you know these points. अल्फा पार्टिकल्स ज्यादातर पास हो गए. ईशा, सेकंड पॉइंट क्या है? कुछ पार्टिकल्स लेस देन 90 डिग्री, कुछ पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड 1 out of 20,000 मतलब वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक. मतलब वो 90 डिग्री से 180 डिग्री से रिटर्न हो गए, रिवर्स देयर पाथ. So this were the 4 observations. Any doubt? No, sir. The observation made by Rutherford on alpha particle scattering experiment, तो Geiger-Marsden experiment भी कहते हैं. यहाँ कौन scattered हुआ? कौन scattered हुआ? अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से scattered हुआ? गोल्ड कॉइल से. Okay, so now we can make the conclusions. What are the conclusions of Rutherford experiment? Any doubt till now? No, sir. No, sir. Any people's please reply. No, sir. Okay. So I hope that Rutherford experiment, which was already known to you, experiment के बारे में मालूम था, तो उसके observations होने के बाद conclusion भी मालूम है आपको. What are the conclusions? Some students are very smart to write all that answers also, so that we get a proper material. So पूरा ready-made material मिल जाए. What is the third topic? Conclusions of Rutherford experiment or postulates. ये उसके postulates है. Postulates of
Rutherford's atomic model. Rutherford atomic model. Rutherford से जो मॉडल दिया था एटम के बारे में, उसके postulates मतलब points. Postulates मतलब points. So what is first point? I'm waiting for your answer. What are the points? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. बराबर, पर वो बहुत Fixed बाद में point. आएगा, बहुत बाद में आएगा. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? Elect इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले क्या आएगा? उन्होंने चार्ज नहीं फाइंड किया, मतलब चार्ज का कुछ ऐसा बोला नहीं उन्होंने. Atoms surrounded by negatively charged. ठीक है, So, स्ट्रक्चर it fixed radius. फर्स्ट पॉइंट इज Move uniformly. सर्कुलर पाथ में वो फिक्स रेडियस के. कीवर्ड बाय. Most of the space is empty. Okay. Whole positive charge and almost mass, approximately 99% of mass, is situated at the center of the atom in a small sphere called सारा पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन सारे अंदर हैं, एंड ऑलमोस्ट मास मतलब 99% क्यों का, क्योंकि 1% मास इलेक्ट्रॉन का जो एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर है. होल पॉजिटिव चार्ज and almost mass, that is 99%, is situated at the center of the atom. सारा mass कहाँ situated है? At the center of the atom in a small sphere. छोटे से sphere में है. That sphere is called as nucleus. This was first point, which was postulates was given by Rutherford. Or confusion. क्योंकि 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट है ना. हाँ. Then atom consists of, actually ये पहला पॉइंट भी कह सकते हो, atom consists of, most of the part of atom is hollow. Most of the part of atom is hollow, empty, hollow or empty, you can see. क्योंकि ज्यादातर पास हो गया ना, it means that most of the atom का ज्यादातर पार्ट कैसा है? खाली. Third, now electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. Electrons, negatively charged electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. Fourth point, the size of atom is 10 raised to minus 10 meter, and size of nucleus, anyone? Minus 15 meter. Size of atom is minus 10 and size of nucleus is minus 15. Nucleus बहुत छोटा है, atom बहुत बड़ा है. कितना गुना बड़ा है? 1 lakh times. Minus 10 minus 15, 10 raised to 5. 10 raised to 5 मतलब 1 lakh times the atom is bigger than nucleus, or nucleus is smaller than atom. 10 raised to minus 5. तो बेसिकली एटम बहुत बड़ा है. एक एग्जांपल देता हूं मैं. 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर का रेडियस लेके अगर एक आपने स्फीयर का अंदर ग्राउंड लिया है क्रिकेट ग्राउंड में, और उसमें 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा मार्बल अगर रखा है, 1 सेंटीमीटर की रेडियस वाला स्फीयर, इतना बड़ा फर्क है। मतलब एक क्रिकेट ग्राउंड में एक मार्बल सेंटर में रखा है, क्रिकेट ग्राउंड में एक सेंटर में छोटा सा मार्बल रखा है, दैट इंडिकेट दैट बहुत बड़ा एटम है, बहुत छोटा न्यूक्लियस। कितना टाइम्स ये अगर आप देखते हो तो ये 10⁻³ मीटर होता है, और ये 10⁻², रिलेशन 10⁵ का ही आएगा। मुझे लगता है आपको मालूम होगा -2 और -+3 मतलब क्या है, मीटर में कन्वर्ट किया ना, इनके बीच में रिलेशन है 10⁵ का। मतलब 1 किलोमीटर की रेडियस का अगर एक क्रिकेट ग्राउंड लेता हूं मैं, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा मार्बल रखता हूँ, इतना फर्क है। most of the most of the part of atom is hollow, empty. Second part, सारा positive charge or almost mass is situated in a small sphere called nucleus. Third point, electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. Now circular orbit was a drawback. Circular orbit correct था, but उसमें क्या बोलना चाहिए था वो बताया नहीं। तो ये तीसरा point. Fourth, the size of atom is -10 and size of nucleus is -15, 10⁻⁻15 meter obviously. I hope those 5 points are clear. If you wish, you can write this part. This is third question of assignment. आज 6 questions या 5 questions होते सब लिखे गए. You can write this part. This is just for explanation. Very good. बहुत सारे students का हो गया लिख के. This is very important conclusion or postulates of Rutherford's model. This comes in chemistry, this comes in physics. एक साथ दो निशान एंट्रेंस और 12वीं दोनों होगा, प्लस 12वीं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 11th दोनों भी होगा. मतलब ये चैप्टर हम इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आपको जब एंट्रेंस के साथ दिखाते जाऊंगा आपको पता चलेगा व्हाई इट वाज सपोज्ड टू टेक इन दिसंबर नॉर्मली, बिकॉज दिस चैप्टर वी कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड कि इसके सब एमसीक्यूज नहीं आए तो चलेगा, ऐसा नहीं, इसमें तो आने ही है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको एक भी छोटी सी भी चीज नहीं पता होगी, वैसा नहीं होगा. और टीच एवरीथिंग इन दैट. Rutherford's atomic model. That was first Giger, Marsden, Dalton, Mahorshi, Kennard. अगर लास्ट लेक्चर एब्सेंट है तो मैं आपको बता दूं पहले हमने क्या पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. वी स्टडी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एटम कैसे आया. तो पहले महर्षि कनर्ड, देन थॉमसन, देन डाल्टन देन थॉमसन, महर्षि कनर्ड, देन डाल्टन, देन थॉमसन्स पोस्टुलेट्स ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल, एंड फिर रुदरफोर्ड के पहले गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट और रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स. तो हमारा यहाँ तक हुआ है. तो एग्जाम में क्या आता है, रुदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट आता है. तो वी हैव रिटन दैट. आदर्श करेक्ट. ये 5 चीजें समझ में आई होगी मुझे लगता है 5, बट यहाँ आज मैंने बोर्ड पे 3 सिखाई. व्हाट आई टॉट, गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट आपको असाइनमेंट दिया. सेकंड क्वेश्चन इज, पहला क्या था, रुदरफोर्ड पहला Observation of Rutherford. observation and then computer. I hope everyone has written this part. इसमें थोड़े वर्डिंग चेंज करना है तो आपको नोट्स और टेक्निक यूज कर सकते हो. मैं तो अपनी वर्डिंग बता रहा हूँ, आप इसे आगे पीछे कर सकते हो. कंसेप्ट क्या है कि आपको समझ में आया क्या, कैसे लिखना है, एज जैसा मैंने वर्ड लिखा है वैसे ही जरूरत है क्या, अगर 99.9 कर दिया तो सब चलेगा क्या, बस 99.9 भी करोगे चलेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, 1836 times smaller, exactly 1836 times. Mass of proton
and mass of electron. So proton is 1836 times. Sometimes people says 2000 times. ये approximate है, ये exact है. इलेक्ट्रॉन के इतना गुना, इतना टाइम्स मास ज्यादा है प्रोटॉन का. प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम एज न्यूट्रॉन. उसमें न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा रहता है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में जाके बैठ गए और इलेक्ट्रॉन जो हल्का मास कम था उसको बाहर खड़ा कर दिया. हल्का था मतलब was having less mass. तो जो मास कम था वो बाहर है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है. मतलब 99.9% भी आपने बोला होगा ना, वो भी चल रहा. आई होप प्रोटॉन ये आपने सेंटेंस दी थी, आप लिखते जा रहे हो 1836 टाइम्स. 1840 टाइम्स. न्यूट्रॉन का मास 1840 टाइम्स. कोई डाउट है? No, sir. You can write down this mass of electron. Write down all the three masses. Mass of proton, mass of electron, mass of neutron. Is it my voice is not clear? Sir, sometimes it comes late. Okay. But I cannot help in that. Now is it synchronized? Samruddhi? Yeah, I hope you have written this mass of proton, mass of neutron, mass of electron. If you wish sometime that exact mass will be mentioned, तो ये exact mass is 7.3. अगर आप मुझे और भी ज्यादा डिटेल में पूछोगे तो it is 1.7. This is in terms of atomic mass unit. Different books mention somewhat different, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, but लॉजिक है कि प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन इज हैविंग मोर मास देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बेचारा बहुत कम मास वाला है. ये दोनों ऑलमोस्ट वन है. इसीलिए आपने कभी प्रोटॉन को ऐसा देखा है लिखा हुआ? आई एम नॉट यूजिंग चैट. हाँ प्लीज चैट के आप रिप्लाई दीजिए. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ये आपने प्रोटॉन देखा है +1 +1 +1 1. व्हाट इज +1 इंडिकेट्स? सब स्टूडेंट ने रिप्लाई देना है. आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. यस. कौन आंसर देगा? यस राजवी. प्रोटॉन को आपने देखा है ऐसा लिखा हुआ प्रोटॉन +1 and 1. व्हाट इज दिस +1? मास. हाँ, चार्ज. प्रोटॉन +1 चार्ज. 1 is mass, atomic mass unit में 1 approximated.
1 अप्रोक्सीमेटेड। न्यूट्रॉन को ऐसा लिखा रहता है चार्ज 0 मास 1। तो समटाइम यू सीन अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जिसमें ऐसा न्यूट्रॉन लिखा रहता है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, +1 की जगह -1, और मास इसका 0 नहीं होता, बट हम लिखते हैं ऐसा क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में 0.005111 है। मुझे लगता है अब आपको इसका लॉजिक भी समझ में आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में इन दोनों को 1 और इसको 0 कंसीडर किया जाता है। ये इनके चार्ज है और ये इनके मास है। ये U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यू नो दैट 1.660 पता होगा आपको, 1.66051 1.66056 into 10⁻⁻27 1.66057. Not sure with this last digit, but 1.6 is normally book में तो यही दिया रहता है। 1 atomic mass unit is 1.66 into 10⁻⁻27 की। इसलिए आपने जब 1.673 देखा प्रोटॉन का, इससे थोड़ा बड़ा था इसीलिए 1.0078 हुआ, और 1.675 इससे थोड़ा और बड़ा है इसलिए 1.0085 हुआ। ऑब्वियसली -27 तो है ही दोनों। तो अब EG में नहीं लिखते प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लगता है एक पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया आपको कि 99% और 99.9% ऑफ मास इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल स्फीयर एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। तो अब तक हमने जो देखा दैट वाज रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड ऑब्जर्वेशंस, रुदरफोर्ड कंक्लूजंस, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बोर्स थ्योरी आने वाला है। तो उससे पहले मैंने आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एंड में दिखाया था एमसीक्यूज रिलेटेड एंट्रेंस वाला पार्ट, वो मुझे कंक्लूड करने के लिए ओके रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक लर्न कर लेते हैं, फिर बोर्स थ्योरी लर्न करेंगे, और फिर मैं आपको बोर्स थ्योरी होने के बाद ये एंट्रेंस वाला सब एक साथ लेक्चर में लूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस सीक्वेंस वाला पार्ट पहले क्यों नहीं बताया। ये 12वीं बोर्ड वाला पार्ट एक साथ हो जाएगा ना तो एंट्रेंस वाला पार्ट समझ में आने लगेगा। ओके, तो व्हाट वाज रुदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन क्या था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते तो क्या हुआ, सच है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये न्यूक्लियस है, क्या नित्या D1? D1 मतलब डन। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। नाउ सर हो गया ना सर्कुलर ऑर्बिट, बरोबर बोला था, ऐसा ही है सच में, ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के। तो रुदरफोर्ड की गलती क्या हो गई, तो वो क्या बोल दिया पता, सर्कुलर ऑर्बिट में बोला, बट उसने आगे कुछ नहीं बोला। अब हम है ना उस जमाने में क्लासिकल मतलब पुराने जमाने वाले क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्लासिकल मतलब क्या, पुराना इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो मॉडर्न नहीं है, पुराना इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल कहता था कि एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है, एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है, वो अलग ही काम कर रहा था, उसका तो काम अलग ही था। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ रहे थे, हम तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। पर उसने जो बोला था ना वो पॉइंट लेके आया कोई, तो बोला अरे देखो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, चार्ज है या अनचार्ज है? इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज या अनचार्ज है? चार्ज। तो स्टूडेंट एक बार रेज हैंड करो फास्ट, आधे से ज्यादा लोग हुए हैं लिखते। हे माईक तुम्हाला हँड रेज करता येतं, तोंडातून बोलायला येत नाही का? हा का पैसे घेणार त्यासाठी? आदर्श पाटील आहे का तू लेक्चर मध्ये? हँड रेज कर. ध्रुवी जैन, निखिल पाटील, मिताली शुक्ला, मिहिल पाटील, मानसी पाटील, आदित्य पिंपले, ईशा, अंकित राठोड, श्रेयस माली, आरती यादव, ईशा शुक्ला, गार्गी, रेज हैंड. ऋतिक पाटील, मिहिल पाटील, मिताली शुक्ला, निखिल पाटील, राम पाटील, संकेत राठोड. Who's left? ईशा शुक्ला, मिहिल पाटील, मिताली शुक्ला, निखिल पाटील, संकेत राठोड, श्रेयस माली आणि आरती यादव. आरती आप लेक्चर में हो क्या? ओके. मिहिल पाटील, नाउ ईशा शुक्ला, यू डोंट हैव, ओके ओके ईशा. आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही है। आपका ईशा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ नेटवर्क प्रॉपर है मेरा. मिहिल पाटील, राम पाटील, संकेत राठोड एंड श्रेयस माली. मिहिल पाटील, संकेत राठोड. आणि आता जे ज्यांनी रेझेंट केलं ना त्यांनी सर्वांनी आन्सर पण द्यायचं आहे. श्रेयस माली नया स्टूडेंट, आर यू एबल टू हियर? ओके श्रेयस करेक्ट. संकेत राठोड एंड मिहिल पाटील दोनों लेक्चर में नहीं. ओके थैंक यू, यू कैन लोअर योर हैंड. Please lower your head. Okay. So what I was saying that classical electromagnetic theory क्या कहता है, एक्सेलरेटेड चार्ज. यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, बट सिर्फ एक्सेलरेटेड है क्या? तो सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसको अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स कब होता है? व्हेन देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. मतलब ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना, it has two acceleration, one acceleration towards center and one acceleration along the tangent. तो tangential and radial acceleration, ये दो acceleration होते हैं अगर सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है. ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है कि रेडियल और टेंजेंशियल दो टाइप के एक्सेलरेशन. ओके. एक्सेलरेशन आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है ना, फोर्स आता है, यस सर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पास एक्सेलरेशन भी है, मतलब वो एक्सेलरेटेड भी है. एक्सेलरेटेड चार्ज दोनों कंडीशन ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सेटिस्फाइड करता है. तो रुदरफोर्ड की थ्योरी देने के बाद लोगों ने कहा मतलब इसने एनर्जी रेडिएट करना है, एनर्जी रेडिएट करना चाहिए. तो सर इसका मतलब ये एनर्जी रेडिएट करेगा, कैसे करेगा? तो अगर वो एनर्जी रेडिएट करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना एनर्जी रेडिएट करेगा, तो क्या होगा, स्लोली वो अपनी रेडियस कम करते 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 स्पाइरल पाथ, कौन सा पाथ? स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा. अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात माने हम, तो एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी ऑर्बिट का रेडियस कम होते जाएगा एंड फाइनली वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा.
अगर वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा तो इसका मतलब है एटम जो है वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। मतलब आज ये जो मार्कर है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे अनस्टेबल है और फाइनली न्यूक्लियस पे गिर जाते हैं तो ये खत्म हो गया एटम, मतलब मार्कर गायब। ऐसा नहीं है, ये तो स्टेबल है सर, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाते। बट ये क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, वो उसके ऊपर न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो एटम अनस्टेबल हो गया। बट सर रुदरफोर्ड फिर गलत बोला क्या? आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब क्या, मैंने सपोज एक स्टूडेंट है उसको ओके राम पाटिल स्टूडेंट है, उसको मैंने 10 लाख का बैग दे दिया अचानक, यहाँ क्लास के आसपास जा रहा था तो मैंने हाथ में पकड़ा दिया, 10 लाख कैश था उसमें, 2000 की नोट थी ऑब्वियसली, 2000 और 500 पुरानी नोट नहीं। तो वो लेके राम पाटिल क्या हो गया, एक्साइटेड। अब उसको क्या 10 लाख मिल गया, वो भी पॉकेट का, तो खुश हो ही जाएगा, एक्सेलरेटेड हो गया। और वो एक्सेलरेटेड चार्ज वो है ना, साइकिल लाया था, साइकिल लेके क्लास में आया था, तो बाइक भी लाता है कभी साइकिल भी लाता है, तो साइकिल लेके आया था। तो कैसा होता, वो जब घर जाने लगा ना तो उसने सोचा साइकिल छोड़ो, अभी तो कार लेने का जमाना आया, और दूसरी कार 10 लाख में अच्छी नहीं मिलेगी, फिर भी वो सोच रहा था। तो वो रिक्शा पकड़ा उसे घर पे जाने के लिए, थोड़ा दूर रहता है ना प्राइवेट रिक्शा, और रास्ते में ना ऐसा 2000 की नोट ऐसे उड़ाते उड़ाते जा रहा था। समझ रहा है क्या? क्योंकि वो क्या था, एक्सेलरेटेड चार्ज था, वो एनर्जी रिलीज करने जा रहा था, वो भी कैसा, कंटिन्यूअसली, बंडल बंडल नहीं, एक एक नोट ऐसा उड़ा रहा था फटाफट। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर वो एक्सेलरेटेड चार्ज है तो उसे एनर्जी रेडिएट करना ही चाहिए। 10 लाख अचानक मिला तो इतना एक्सेलरेटेड नहीं होगा, वैसा बहुत कम होगा, एक्साइटमेंट में आ जाएगा ना, यार पैसा आ गया है। हाँ वो अलग होते हैं कुछ लोग जो चुपचाप घर पे जाके रख देंगे, पर कुछ लोग वो एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे। कौन बोल रहा था ये? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह रहा था। तो इसका मतलब है अगर एक्सेलरेट करेगा तो धीरे धीरे उसके सारे प्रेशर खत्म हो जाएगा और वापस वो रोड पे आ जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा वापस। बट ऐसा नहीं है, वो तो उसी ऑर्बिट में घूमते रहता है। इसका मतलब है पहला जो पॉइंट था रुदरफोर्ड का, उसको पहला ड्रॉबैक आ गया। व्हाट इज फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल? बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कोई डाउट है? No, sir. According to classical electromagnetic theory, the accelerated charge should radiate energy continuously. अब ये मार्कर मैंने चेंज किया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। According to classical electromagnetic theory, accelerated charge should radiate energy continuously. That means the electron will follow a spiral path and fall on the nucleus. Finally, fall on the nucleus. That means atom is unstable, but actually the atom is most stable. Atom is most stable. वापस पूरे पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ। According to classical electromagnetic theory, an accelerated charge should radiate energy continuously. That means the electron will follow a spiral inward path and finally fall on the nucleus. That means atom is unstable, but actually the atom is stable. Atom तो stable है, पहला ड्रॉबैक। सेकेंड, यहां तक समझ में आया? बहुत बहुत बड़ा पॉइंट था ये क्लास का, कोई डाउट है? रुदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक आपने सुना था, बट ये अलग थोड़ा सा था, समझा होगा अभी आपको कि रुदरफोर्ड ड्रॉबैक क्यों आया। क्योंकि उसने सर्कुलर ऑर्बिट में ये नहीं बोला कि वो स्टेबल ऑर्बिट में है, वो बोला घूम रहा है बस। अगर वो काश कह देता कि वो स्टेबल ऑर्बिट में है तो बच जाता, वो बोला ही नहीं, कुछ सर्कुलर ऑर्बिट बोल के छोड़ दिया उसने। तो सर्कुलर ऑर्बिट में उन्होंने कंक्लूजन किया कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया, एनर्जी रेडिएट करके ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली तो ऐसा हो नहीं रहा है, एटम तो स्टेबल है। सबको समझा ड्रॉबैक 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will not mind if there are
50, 75? Yes, sir. 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 That much I can understand that there are some students who are there who are continuously hearing all that part. ये पहला ड्रॉबैक आपको पूरा सा लिखना पड़ेगा. बट अब आया क्वेश्चन कि सर सेकंड ड्रॉबैक क्या था? एनीवन नोज व्हाट इज सेकंड ड्रॉबैक? अब सेकंड ड्रॉबैक लेने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ अलग सिखाना चाहता हूँ. ये टॉपिक सिखाने के लिए ना मेरे पास काश ब्लैक बोर्ड होता, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर नहीं, चौक वाला. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखा हो, रेनबो, अगर यहाँ सपोज पहला कलर है तो वो लाइट होते जाएगा, फिर दूसरा कलर स्टार्ट होगा, फिर वो लाइट होते जाएगा, तीसरा कलर स्टार्ट होगा रेनबोज में, फिर चौथा, फिर पांचवा. तो अगर आपने 7 कलर्स देखे होंगे रेनबोज के, तो वहाँ जो कलर्स है उनका कैसा है कि पहले लाइट होता है, फिर वो सॉरी पहले डार्क होता है, फिर वो धीरे धीरे लाइट हो जाता है. कलर्स है ना वो इस तरह कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस. उस टाइप के स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. बट यहाँ अगर एक एक ऐसी लाइन ही होती with your सिर्फ वायलेट की लाइन, इंडिगो की लाइन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की लाइन. और तीसरा होता है बैंड, वायलेट का बैंड, इंडिगो का बैंड. ऐसे बैंड्स होते हैं, बैंड्स. आपने टीवी में कभी कभी अगर याद हो, आपने टीवी में कभी बैंड देखे होंगे, जैसे वो टीवी स्क्रीन बंद हो जाता है ना, तो ऐसा एक कलर्ड बैंड दिखते हैं मस्त. 7 कलर्स, अलग 7 कलर्स ही नहीं होते, बट वो कुछ भी कलर्स होते हैं, बट वो बैंड होता है, बैंड टाइप स्ट्रक्चर दिखता है. बट बैंड की जगह एकदम थिन लाइन दिखती है, तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम. और अगर वो ब्राइटनेस ज्यादा से कम होती जा रही है, तो दूसरा जैसे रेनबो में होता है, जैसे आपने स्पेक्ट्रम में देखा हुआ है 7 कलर्स का, तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. ये लाइन है जिसके बीच में डार्क स्पेस होता है, बीच में डार्क स्पेस. और ये बैंड स्पेक्ट्रम है, बैंड. और बीच में डार्क स्पेस नहीं होता एक्चुअली, मैंने ऐसा बनाया, बट मैं आपको कहूँगा ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा बैंड अलग अलग है. आपने, मैंने बोला ना, आपने टीवी में देखा होगा अलग अलग कलर की बैंड्स होती है. तो मैंने कहा ना चौक रहता ना, तो मैं आपको दिखाता लाइट और डार्क कैसे होता है. बट ये अभी व्हाइट बोर्ड में उतना अच्छी तरह नहीं हो रहा. ये है कंटिन्यूअस लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम. 3 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं. तो रुदरफोर्ड कह रहा था कि एनर्जी को है ना, तो राम पाटिल क्या कर रहा है, एनर्जी ऐसा 2000 की नोट कंटिन्यूस फेंकते जा रहा है, 2000 की नोट ऐसे कंटिन्यूस फेंकते जा रहा है. तो स्पेक्ट्रम आना चाहिए कंटिन्यूस. बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो लाइन स्पेक्ट्रम था. स्पेक्ट्रम जो देखा गया वो कैसा स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम, ना बैंड ना कंटिन्यूस. अब क्वेश्चन मार्क कि उसने ये वर्ड, मैंने आपको पता होगा, मैंने हाईलाइट किया था कंटिन्यूस. तो अगर एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है तो बैंड भी, स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था. बट ऐसा नहीं था. ऐसा था स्पेक्ट्रम वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम, देयर वर डेफिनेट लाइंस. तो ये चीज रुदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया. ये 2 ड्रॉबैक्स रुदरफोर्ड की थ्योरी को डुबा गए. मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स. Second drawback, according to Rutherford theory, the spectrum should obtain as a continuous spectrum, but experimentally observed spectrum was a line spectrum. जब एनर्जी एमिट करता है तो एनर्जी इज एक्चुअली
Now mu is frequency. Max Planck quantum theory सुना होगा. Mu is frequency and frequency is c upon lambda. तो हर एक वेवलेंथ का अलग अलग कलर का लाइन आएगा. मतलब बोलोगे इस स्पेक्ट्रम कहाँ से आया, तो एनर्जी एमिट कर रहा है तो हर एक एनर्जी के साथ हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, हर एक का वेवलेंथ अलग होगा. तो वेवलेंथ कैसी आनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट ऑब्जर्व वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम and that makes the drawback for Rutherford. I hope second drawback is also very well understood. Yes, sir. Okay. क्या होता है कुछ लोगों को माइक तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है. Remaining peoples are not here. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. I hope you understand the meaning of saying yes makes us positive, as well as we can understand that we are there. तो स्पेक्ट्रम्स के मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक्स आ गए. अब हमने रदरफोर्ड की थ्योरी को एंड कर दिया. भाई तू तो पूरा ना हो गया, तू जा रही. कौन रदरफोर्ड की थ्योरी के ड्रॉबैक्स आ गए. सर क्या ये दो ही ड्रॉबैक थे? नहीं, बहुत सारे थे, बट ये दो ड्रॉबैक बहुत जल्दी पता चल गए. बाकी सारे ड्रॉबैक्स से तो बाकी उसे सब बताया था क्या? नहीं, वो भी नहीं बताया था. फिर उसकी पोस्टुलेट में एक अच्छी बात थी, उससे जो बोला ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे सर्कुलर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वो सच है. उसने एटम न्यूट्रल भी बोला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना इलेक्ट्रॉन बाहर था, पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, ऐसा भी बताया था उसने. मतलब वो भी करेक्ट है कि एटम न्यूट्रल है. वो सारी चीजें करेक्ट थी. इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं. प्लैनेटरी मॉडल बिकॉज सन के आसपास, जैसे उस टाइम में उसे लगता था कि सन के आसपास जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सर्कुलर में, एक्चुअली इलिप्टिकल घूमते हैं. बट उसे तभी लगा था कि जैसे सन के आसपास प्लैनेट घूमते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज आल्सो कॉल्ड एज प्लैनेटरी मॉडल. बट आई होप दैट यू नो दैट वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते. तो फिर वो बाद में कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि वो प्लैनेटरी मॉडल है. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी ये प्लैनेटरी मॉडल है. मॉडल मतलब समझता है ना, इट्स अ टाइप इस तरह का, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल. तो आई होप दैट रदरफोर्ड एकदम अच्छी तरह समझना. 1897 में थॉमसन लास्ट काम करके गया, 1903 1908 के बीच में ये रदरफोर्ड ने थ्योरी किया, और ह्यूगेमार्सिन एक्सपेरिमेंट भी उसी दौरान हुआ. अब प्रॉब्लम क्या है, सर इसकी थ्योरी गलत, तो करेक्ट थ्योरी किसकी थी? उसी का स्टूडेंट था नील बोर. उसने थ्योरी दिया. What was the theory which was given by Niels Bohr in 1930? One thing. 1913 में वो स्टूडेंट था, आपको बताया होगा मैंने पहले, स्टूडेंट था रदरफोर्ड का स्टूडेंट था. वो चुपचाप बैठा था, कर तू तेरे से जो हो रहा है वो कर, बाद में मैं देख लूंगा. 1908 से 1909 तक तो रदरफोर्ड था, वो सब देख रहा था. बट एज सून एज रदरफोर्ड पास हो गए, आपको पता होगा कि वो कैसा स्टूडेंट रहा, ही देख रहा था कि ये सर जाए, बाद में मैं देखता हूँ. तो उससे क्या किया, उसकी थ्योरी. आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंट्री फ्रॉम वेयर मैक्स प्लैंक बिलोंग्स, बट ही हैज गिवन हिज थ्योरी इन द ईयर 1900. 1900 में एग्जैक्टली मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी. उसका नाम था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. और ये रदरफोर्ड बैठा था आराम से. रदरफोर्ड की थ्योरी जो थी, he was बोर्स देख रहा था, जो दूसरे कंट्री में था. और 1900 की जब बात कर रहा हूँ तो इतना फ्रिक्वेंसी नहीं था फ्लाइट्स का, तो इंटरनेट नहीं था इतना. तो आप वैसा व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अरे मेरा थ्योरी इधर तक आया है तो आगे देख, ऐसा नहीं. वर स्टेइंग इन फार कंट्री, मतलब दोनों अलग अलग कंट्रीज में थे. बट हाँ, रिसर्च पेपर्स वर डिस्कस्ड बाय देम. एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जहाँ रिसर्च पेपर डिस्कस होते थे. तो रदरफोर्ड की थ्योरी का ड्रॉबैक आ रहा था, और मैक्स प्लैंक की थ्योरी सुनी हुई थी बोर ने. समझ रहा है, रिसर्च ऐसे नहीं होता. उसने कैसे किया, सब पेपर्स पढ़ता था वो भी.
इसने क्या रिसर्च किया, उसने क्या, तो उसने मैक्स प्लैंक का थ्योरी पढ़ा था, किसने, नील बोर ने। तो पता नहीं उस जमाने में उसने क्या किया है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो रुदरफोर्ड का ऐसा थ्योरी का कागज पड़ा था, उसके जो उसके सर ही था ना, तो रुदरफोर्ड गया, उसने क्या किया, उसके कागज उठाया और बोर की थ्योरी का प्रिंट आउट लेके रखा, प्रिंटर नहीं था ऑब्वियसली, जो भी होगा वो पेज, और उसने ऐसा बोर थ्योरी, अगर अच्छा आदमी होता ना नील बोर, तो वो था मॉडिफाइड रुदरफोर्ड थ्योरी करके नाम को रहने देता, पर वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने क्या क्या नाम दिया, नील बोर्स थ्योरी। क्या किया, क्या उसने, कुछ नहीं किया, रुदरफोर्ड की थ्योरी जो थी उसमें मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को जोड़ दिया और एक नया थ्योरी दिया, बोर्स थ्योरी। काफी इंटरेस्टिंग है, एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हिच, बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जोड़ के बना बोर्स थ्योरी। समझा? बहुत चालाक। Yes, sir, understood. और ये चीजें है ना सीखने जैसी है कि रिसर्च इजीली नहीं हुआ, मॉडिफाइड किया नील बोर ने। पहला पॉइंट क्या है, दोनों की थ्योरी पे बेस्ड है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये रुदर मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी था क्या, तो आपको केमिस्ट्री में हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आपको मैं वापस बताता हूँ। इस चैप्टर में हम ये बहुत बार वर्ड यूज करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी म्यू, म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, वी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, एच म्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उनका कहना था कि एनर्जी हमेशा कैसे होती है, एमिट या एब्सॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, क्वेंटा, फोटॉन, फोटॉन, PHOTON, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन, फोटॉन। Energies are always emitted or absorbed in the form of quanta, packets or photon. Energies are always emitted or absorbed in the form of packets, quantas or photon. कभी भी एनर्जी सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा, हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में, इसलिए उसका पैकेट का वैल्यू है एच डी, हमेशा इसके मल्टीपल्स में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, NH न्यू, and is an integral number, integer मालूम है, -1 -2 -7 +2 +4 +5 +7 +100 +200, बट 2.1 नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होता, इंटीग्रल होता है। तो एनर्जी इसकी फॉर्म इससे कम नहीं होगी, ये सबसे छोटी वैल्यू और उससे बड़े वैल्यू मिलते हैं। समझा क्या? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी केमिस्ट्री में पढ़ाई था आपने। Yes, sir, understood. तो ये जो क्वांटम थ्योरी ना काफी इंटरेस्टिंग है याद रखने का, कि हमें ना एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब करते हैं पैकेट के फॉर्म में, आप अगर कोई मार्केट में जाओ और 2 रुपए का पार्ले जी का पैकेट मांगो, तो 2 रुपए ये सबसे छोटा पार्ले जी का पैकेट होता है, उससे छोटा नहीं आता, उससे छोटा नहीं आता, बिकॉज एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। I hope you understand. Energy is always comes in the form of packet. 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का पैकेट। बट आपने ऐसा कहीं दुकान में जाके देखा होगा पार्ले जी के ऐसे सिंगल बिस्किट मिल रहे हैं? नहीं, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ग्लूकोज, ग्लूकोज सुना है? ग्लूकोज कभी आपने देखा है? ग्लूकोज का पाउडर ऐसा 2 चम्मच ग्लूकोज का पाउडर मिल रहा है, 2 चम्मच, 1 चम्मच, मेरे को स्पोर्ट्स खेलने जाना है, ग्लूकॉन डी पीना है, ग्लूकोज खाना है, तो चम्मच 2 चम्मच मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, हमेशा एनर्जी कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ये पीछे था, बट आपको मुझे लगता Yes, sir. है एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है, ये सच बात है। तो ये एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है। और ये जो कह रहा था रुदरफोर्ड, उसको एनर्जी कैसे भी देते थे वो तो ऐसा 100 रुपए की नोट भी उड़ा रहा था, राम पाटिल 2000 की नोट दी थी, तो भी उसको 2000 कैसे ब्रेक करके फेंक रहा था। क्या राम, बरोबर ना?
तो ऐसा नहीं चलेगा, एनर्जी हमेशा पैकेट के फॉर्म में आएगी, मुझे बंडल ही फेंकना पड़ेगा अगर 2000 का बंडल फेंका। अरे समझ रहा है क्या? हाँ सर, समझा। हाँ सर। तो बोर्स थ्योरी का पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कौन है ये बोर, ये है कौन जिसने सारी चीजें चेंज कर दी। नील बोर वाज अ one who has given this theory, and उसका पहला point is based on Rutherford and Max Planck quantum theory, first point. Second point is only given for hydrogen atom. मुझे तो लगता है ये मारवाड़ी, ये गुजराती होगा, बहुत चालाक होगा। उसने क्या क्या बताया, थ्योरी सिर्फ दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, बोलता है मैं बाकी नहीं दूंगा, जाओ जो करना है करो, हाइड्रोजन एटम के लिए मेरी थ्योरी बस। ऐसा क्यों? तो ऐसा एक ही एलिमेंट है यूनिवर्स में जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो और न्यूट्रॉन ना हो। ऐसा हाइड्रोजन के बाद हीलियम देखोगे तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मास नंबर 4 होता है हीलियम का। बट हाइड्रोजन ही ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता। हम बोलते हैं मुझे ऑन लिखा देगा, ऑन 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वाला एक ही एलिमेंट है यूनिवर्स में, और हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में वो बता सकता था। इसलिए उसने क्या बोला, मेरी थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, आपको जो करना है कर लो, यूरेनियम तक आप सब कर लो, मैंने मेरी थ्योरी दी है ना, तो आप मुझे सेकेंड और हीलियम के लिए बताओगे ना, मेरी थ्योरी वैलिड नहीं। मेरी थ्योरी किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन के लिए। अब इसमें ड्रॉबैक निकाल के दिखाओ, कोई नहीं निकाल पाया। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझा बोर्स थ्योरी का, व्हाट इज फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट? Bohr's theory was based on Rutherford theory and Max Planck quantum theory. Second point, it is only given for hydrogen atom, and third point, it is based on 3 postulates. Based on 3 postulate. उससे बोला मेरी कहानी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, मेरी कहानी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, आप उसके बाद देख लो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा और फिर खत्म। इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, बोर्स थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स हैं, तो एंड में आएंगे ना, पहले तो बोर्स थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यहां तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे लगता है बोर्स थ्योरी अच्छी तरह समझ में आया होगा कि शुरुआत कैसे हुई। अभी तक बोर्स थ्योरी हुआ नहीं है, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बोर्स थ्योरी के ऊपर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एंट्रेंस इतना खतरनाक है, सब बहुत मजेदार है। और क्या आता है पता है एंट्रेंस में? एंट्रेंस में जो भी बोर्स थ्योरी रिलेटेड आएगा उसमें ये आएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या होता है सर हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन में जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन में न्यूट्रॉन कितनी भी हो, बट इलेक्ट्रॉन एक ही है, ऐसे एलिमेंट को उन्होंने बोला हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब सर क्या समझा नहीं? एग्जांपल, हीलियम में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में। मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से आप एक ही निकाल लो, अंदर कुछ भी हो बट बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। इसे हीलियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना आपने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना उसके पास, इसीलिए हीलियम आयन। ओके, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, 3 होते हैं ना, तो 2 निकाल दो तो बचेगा सिर्फ 1, तो लिथियम +2 आयन इज हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन जैसा, क्योंकि उसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, बेरिलियम में +3, सोडियम में +10। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में से, 10 निकाल दो, 1 बच गया ना, तो वो बन गया हाइड्रोजन लाइक एटम। एंट्रेंस में ये आएगा, 12वीं में हाइड्रोजन एटम ही आएगा,
गैसीय और स्टेट दोनों में हाइड्रोजन एटम आएगा, बट एंट्रेंस में क्या आएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम आएगा। तो आपको क्या करना होगा, इतनी सा फर्क है, मैं वो बता दूंगा आपको, कितना आसान हो जाएगा, सेकेंड्स में एंट्रेंस समझ में आ जाएगा। इसका करना तो एक ही है, इसके अंदर Z1 होता है ना, हाइड्रोजन का Z1 होता है एटॉमिक नंबर। इधर आप 2 लोगे, इधर 3 लोगे, इधर 4 लोगे, इधर 11 लोगे, वैसे Z का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बस उतना ही फर्क है एंट्रेंस में और 12 में। तो मुझे लगता है आपको बोर्स थ्योरी का पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट समझ में आया। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? इट इज बेस्ड ऑन Rutherford and Max Planck quantum theory. Second point, what is second point? It is only given for only for hydrogen. it is only given for hydrogen atom, and it is based on 3 postulates. 3 postulate. If you wish to write, you can write this on. बोर्स थ्योरी शुरू नहीं हुआ एग्जाम में, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये एंट्रेंस से रिलेटेड काम आएगा, एग्जाम में ये नहीं लिखना है। बट हाँ, पोस्टुलेट्स पूछेगी 4 मार्क के लिए बोर्स थ्योरी, 3 पोस्टुलेट्स। कौन सा एग्जाम्पल अजीब था? समृद्धि पैकेट्स वाला, एनर्जी पैकेट वैसे ही होता है सच में, कहीं भी जाओ। पार्ले जी का, कौन सा? पार्ले जी वाला। पार्ले जी वाला करेक्ट एग्जाम्पल था ना, ऐसा ही होता है। कभी आप पार्ले जी बिस्किट लिखने जाओ, आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। पार्ले जी क्यों, टाइगर, पतंजलि। सर मैंने भी एक चैट भेजा है, पढ़ो उससे। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आया बोर्स थ्योरी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर। No sir. So we were planned to take the lecture till 5. So 5:54 59 हुआ है। तो आपको कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. तो अब है ना, थोड़ा सा मैं जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा ये देखा था, तो 10 मिनट है ना हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं। बोर्स थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है, तीनों पोस्टुलेट बोल देता हूँ आज, बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैं आज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा, बिकॉज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे थोड़ा सा कनेक्शन लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्या है, एक लेक्चर में 12 भी हुआ, वैसा नहीं होना। ओके, सब लोग देखो, पहला पॉइंट बोर्स थ्योरी। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। यस, मानसी पाटिल गायब।
यस देखो बोल्स फर्स्ट पोस्टुलेट हेडिंग लिखो। आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट? ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट? एनीवन? बहुत बड़ा है फर्स्ट पोस्टुलेट। इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Nucleus के आसपास in a Circular orbit. circular orbit. The necessary centripetal force अंदर की तरफ, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है ना, उसको अंदर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है। Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit, and the necessary centripetal force is provided by electrostatic force. किसने प्रोवाइड किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction. Attraction क्यों? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कहेंगे हम? The electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. The necessary centripetal force, circular motion के लिए necessary, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. यहाँ प्रोटॉन बोलोगे या न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है ना। Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. The necessary centripetal force is provided by whom? Electrostatic force, sir. And electrostatic force of attraction, repulsion. Attraction, sir. Why attraction? Because sir, एक positive और एक negative. कौन है positive, negative? Electrons, electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. The electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. The necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. Because समझ पाओ तो ये centripetal force का formula है सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर सिखाने वाला हूँ ये। कौन आस्क? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी भी ब्रेक हो रहा है? वही लेट आ रहा है आवाज। म्यूट हूँ। महंगा अभी आ रहा है बरोबर आवाज? यस सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है? ई। और प्रोटॉन भी ई, चार्ज तो वही होता है। सर इसमें नेगेटिव लिखना है या नहीं? माइनस ई लिखूं क्या? नो सर। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स के अंदर ये दोनों आपको प्लस ही लिखना है, मतलब वो मैग्नीट्यूड लिखना है। इसका ई, इसका ई, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक प्रोटॉन, प्रोटॉन से भी चार्ज ई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस आर लिया ना हमने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Q1 Q2 की जगह ई स्क्वायर क्यों लिखा समझा? Q1 और Q2 दोनों में ई है, क्योंकि इसका भी चार्ज, इसका भी चार्ज। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होगा ना, तो यहाँ तो कुछ 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, बट प्रोटॉन कितने हैं मालूम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? Ze। इसमें 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का। अगर सपोज हीलियम होता तो 2 प्रोटॉन, लिथियम होता 3 प्रोटॉन, बेरिलियम होता 4 प्रोटॉन। बेसिकली क्या लिखूंगा मैं? Ze। हाइड्रोजन का Z1 होता है, इसीलिए ये आता नहीं हाइड्रोजन में। तो हमारे सिलेबस में ये E इंटू ई बेसिकली ई स्क्वायर होगा। इसे कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या कहते हैं इसे? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट। व्हाट इज दैट?
centripetal force mv square upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon r square. mv square upon r centripetal force is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 constant e square upon r square. कैसे आया e square q1 q2 का से e square हुआ और r square तो आपको कूलॉम्स लॉ आता है कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा. तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट पोस्टुलेट को. इस पोस्टुलेट को हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन. क्यों कहते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन? क्योंकि ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन स्टेबल है उस ऑर्बिट में. रुदरफोर्ड बोल रहा था अनस्टेबल है, रुदरफोर्ड बोल रहा था अनस्टेबल है. फिर मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज हुआ, आएगा ना सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट समझा? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? एकदम आसान है. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और उसके जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है between negatively charged electron and positively charged nucleus. I hope you understand this part. Yes, sir. Okay. तो मुझे लगता है आपको आज का लेक्चर समझा होगा. Do you understand today's lecture? This is lecture number 2, which is Yes, explaining what is Rutherford Yes, observation, Rutherford conclusions, what are Rutherford drawbacks and Bohr's theory का first postulate.